how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Ashoka, the beloved of the god. Summary जान लेते हैं सबसे पहले इसकी. The Indian government chose the national symbols from the works of the great Emperor Ashoka, who gave India a rich tradition. Read about Ashoka the Great and know about him. तो यहाँ पे हम इंडिया के ग्रेट सम्राट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है अशोका. देवन यम प्रियदर्शी सम्राट Ashoka was one of the greatest kings of the world. In the entire history of the world, there is no other emperor like him. Historians of India and Europe agree on this. H.G. Wells, a great scholar, historian and writer, said the name of Ashoka shines and shines almost alone a star. तो जो अशोका सम्राट है वो ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक माने जाते हैं. उनकी जो व्याख्या है या उनका जो व्याख्यान है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है. मतलब बाहर के लोग भी जो बाहर के स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो भी उनकी गाथा गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं. Ashoka was unique because he was the greatest and most powerful emperor of his time, but renounced the use of force when he was at the peak of his power. He made non-violence the policy of his government and devoted himself to spread peace. He ruled over an empire which was greater than modern India. It spread over the entire Indian subcontinent and to the east and west beyond the Himalayas. Yet the message he gave to his subjects was the only true conquest is the conquest of men's heart by dharma और moral laws. हालांकि अशोक जो थे वो यूनिक माने जाते थे क्योंकि वो ग्रेटेस्ट थे और पावरफुल एम्परर्स थे. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने धर्म की तरफ वो क्या हो गए थे, डिवोटी हो गए थे और उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लिया था और लोगों से भी ये करने को कहते थे कि किसी भी लड़ाई को अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप धर्म से ही जीत सकते हैं. अशोका वॉज द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. He came to the throne in 268 BC and inherited the empire. ठीक है. In Ashoka's time, Buddhism was a young and energetic religion. It is said that as a young man, Ashoka was very cruel. He got angry very easily and ordered many killings in fits of anger. At the same time, there were strong Buddhist influence working on him. His wife, the daughter of a merchant of Vidisha, was a firm believer in Buddha's principles of love and peace. Many times she made him promise that he would not be violent. In spite of these promises, Ashoka continued to kill and wage wars. तो धर्म का रास्ता अपनाने से पहले जो राजा अशोक थे वो ऐसे नहीं थे. उससे पहले वो काफ़ी वायलेंट थे. इतना गुस्सा उनको आता था कि वो अपने बहुत सारे दुश्मनों को युद्ध भूमि में मार गिराते थे. तो उनकी जो डॉटर थी वो हमेशा उनसे प्रॉमिस लेती थी कि आप वॉयलेंस नहीं दिखाएंगे, ठीक है. लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, उस प्रॉमिस को तोड़ दिया करते थे. अनदर ग्रेट इन्फ्लुएंस वॉज ऑफ हिज यंग नेफ्यू निगरोधा, who was his brother Suman's son. It is believed that Ashoka got his brother Suman killed in order to become the king. He thought Nigorodha would be full of hatred for him. But young Nigorodha had become a Buddhist monk at a very young age and had no bitterness or hatred in his heart against Ashoka. The boy's nobility and forgiveness touched Ashoka's heart. अब अशोक सम्राट क्या थे, वो राजा बनने के लिए उस टाइम पे क्या हुआ करता था, लोग जो थे अपने भाइयों को मार देते थे क्योंकि उनको सिंहासन चाहिए होता था. तो इसी तरीके से अशोका ने भी अपने ब्रदर को मार गिराया था और उन्हें ये डर था कि उनका जो बेटा है निगरोधा वो भी उनकी क्या कर लेगा, जान ले लेगा. लेकिन निगरोधा ने ऐसा नहीं किया. उसने बुद्धिज़्म जो धर्म था वो ज्वाइन कर लिया था और उसके खिलाफ, सम्राट के खिलाफ उसके मन में कोई भी जो दुष्टता थी या कोई भी दुश्मनी नहीं थी. The turning point in Ashoka's life came with the Kalinga War. It brought about a change of heart in him. Ashoka wanted to extend his empire to east and south and therefore attacked Kalinga, modern Odisha. Like all wars, it ended in a huge loss of life. 100,000 people were killed.
150,000 made prisoners and many more suffered. अब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। वो कहाँ गए थे? कलिंगा पे अटैक करने के लिए गए थे, जो आजकल उड़ीसा माना जाता है। उसको वो अटैक करने गए थे क्योंकि वो जो पूरा साम्राज्य था उसको वो हड़पना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा ये लड़ाई बहुत टाइम तक चली थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। द हॉरर ऑफ सच डिस्ट्रक्शन फिल्ड अशोकाज हार्ट विद डीप सॉरो। इतना सारा डिस्ट्रक्शन देख के उनका जो मन था वो भर आया, दुख से वो क्या हो गए थे? व्याकुल हो गए थे। ही वोड नॉट टू टेक एनी मोर लाइफ। और उन्होंने वहीं पे युद्ध भूमि में ही प्रण ले लिया था कि मैं अब किसी और की जान नहीं लूँगा। ही वोड टू वर्क टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस। उन्होंने एक और शपथ ली कि मैं अब हैप्पीनेस एंड पीस, शांति लाऊंगा। He became a Buddhist and set about spreading his message with great enthusiasm. Ashoka appointed officials to see that his message reached the people. More than 2000 years ago, he had the large heartedness to be tolerant of non-Buddhist. His message were carved on the huge rocks and pillars. These rocks and pillars were installed all over his kingdoms. ठीक है, तो उसके बाद जब वो बुद्धिस्ट बन गए तो उन्होंने अपने मैसेज जो थे वो कार्व कराए अपने महल के पिलर्स पे, वॉल्स पे, रॉक्स पे। द रॉक्स एडिटेड एंड Ashoka's pillar can be seen even today. His workers and craftsmen gave the stones a glass like polish which shines even today. Some of Ashoka's messages are, अशोका के जो मैसेजेस हैं जो उन्होंने कार्व किए थे स्टोन्स में, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या मैसेजेस थे? वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। ठीक है, जो हमें करना ही चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स की तरफ हम क्रूअल नहीं होंगे बल्कि काइंड होंगे। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। सत्यमेव जयते उन्होंने ही कहा था। नो लिविंग क्रिएचर शुड बी किल्ड। कोई भी लिविंग क्रिएचर, चाहे बर्ड है, एनिमल है, ह्यूमन बींग है, किसी को भी मारा नहीं जाएगा। पीपल शुड बी जेनरस एंड गिव इन चैरिटी। लोगों को जेनरस होना होगा, दयावान होना होगा, दयालु होना होगा, और अगर वो किसी की कुछ पैसे देकर हेल्प कर सकते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। चैरिटी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं लोग चैरिटी करते हैं, तो वो भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था। Such messages make up Ashoka's Dhamma or Dharma. They teach people how to bring happiness to all living creatures. These messages are in Ashoka's own word. Ashoka took many steps to spread Buddhism. He sent his son Mahendra and daughter Sangamitra to Sri Lanka. On the request of Devanapriya Tisha, the king of Sri Lanka, he sent a branch of the Bodhi tree to that country where it was planted with great reverence. His religious ambassadors traveled all over his empire and beyond. It was largely due to his efforts that Buddhism spread to distant countries such as Ceylon, Sri Lanka, Burma, Myanmar, Thailand, China, जापान, ऑल्सो टू कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। तो उन्होंने जो बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार था वो सिर्फ अपने राज्य तक या अपने स्टेट तक या अपनी कंट्री तक नहीं रखा, बल्कि बाहर के देशों तक भी पहुंचाया। अशोका's little was Devanam Priya or beloved of the gods. He ruled for almost 40 years. The effect of his teachings can be seen on Indian life even today. The government of India has adopted our national symbol from Ashoka's pillars. The wheel or the chakra is in our flag. The four lions sitting back to back are forms of the top of Ashoka's pillar at Sarnath, which Ashoka erected to honor the place where Lord Buddha preached his first sermon. तो अशोका के जो वर्ड्स थे या जो भी उन्होंने बनाए थे, जो भी चीज़ें उन्होंने कार्व की थी, वो मैसेजेस वगैरह हमें आज भी अपने नेशनल सिंबल्स में देखने को मिल जाती है। जैसे अशोका चक्र जो है वो हमें हमारे कहाँ देखने को मिल जाता है? तिरंगे में देखने को मिल जाता है। जो हमारा एम्बलम है वो भी अशोक से ही लिया गया है। वर्ड बकेट स्कॉलर मीन्स अ पर्सन विद ग्रेट नॉलेज। यूनिक मीन्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स। रिनाउंस मीन्स गेव अप। Devoted means giving a lot of respect, time and attention to something. Indian subcontinent, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan together. Energetic means very active and strong. Bitterness, anger and unhappiness. Extend means to make bigger. Would take an oath. Shapat lena. Ambassadors, senior diplomats representing their countries abroad. Now think and answer. Take the correct option.
अशोका वॉज द डैश किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो वो क्या था, वो फर्स्ट किंग था मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिर इन द ब्लैंक्स अशोका मेड द पॉलिसी ऑफ व्हाट, धम्मा, और यू कैन से धर्मा, moral values. Write T for true and F for false statements. Ashoka was one of the greatest kings of the world. Yes, it is true. इसी तरीके से आप बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट अशोका। तो आपको अशोका के बारे में फ्यू लाइंस जो है लिखनी है। तो आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे और अशोका के बारे में लिखेंगे। लाइक सम्राट अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो अदर एम्परर लाइक हिम। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे वैल्यू इनसाइट पे। लर्न अशोकाज मैसेज एंड से अलाउड इन द क्लासरूम। अब आपको अशोका के मैसेजेस लर्न करने और क्लास में पढ़ने हैं या उनको बोलना है। ग्रामर स्ट्रोक्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, पोजेसिव्स, द पोजेसिव्स आंसर द क्वेश्चन हुज। ठीक है, कि किसका ये चीज़ है या किसका सामान है या किसको ये बिलोंग करता है। एग्जाम्पल्स, हुज मैसेजेस, अशोकाज मैसेजेस, वो मैसेज किसके थे, अशोका के थे। हुज बैग, बैग किसका था, लताज बैग। हुज बुक्स, मुंशी प्रेमचंद बुक्स। पोजेसिव शोज पोजेशन, ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड्स एक्सेट्रा। तो आप अपनी ग्रामर की बुक में भी पढ़ चुके होंगे। पोजेसिव मीन्स होता है कि किसी चीज़ पे अपना पोजेशन दिखाना या अपनी बिलोंगिंग दिखाना कि वो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है या उससे बिलोंग करती है। एग्जाम्पल्स, मिल्टन्स पोएम। ठीक है, तो वो पोएम किससे बिलोंग करती है, मिल्टन से बिलोंग करती है। पोएम रिटन बाय मिल्टन, उन्होंने लिखी है तो वो पोएम उन्हीं को ही बिलोंग करती है। मिस्टर वर्माज कार, द कार ओन्ड बाय मिस्टर वर्मा, वो मिस्टर वर्मा ने खरीदी है तो वो कार किसकी कहलाएगी, किसी और की तो नहीं कहलाएगी, मिस्टर वर्मा की ही कहलाएगी। द प्रिंसिपल्स स्पीच, उनके वर्ड है, उनके मुंह के द्वारा बोले गए हैं तो वो उनकी स्पीच हुई। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल, अ मंथ्स हॉलीडे, a holiday that lasts a month. Now formation of a possessive case. When the noun is singular, add s to it. Examples, Ram's pen, king's throne. When a plural noun ends in s, add an apostrophe after final s. Example, girls, dresses, dogs, tails. When a plural noun changes in another way, add s after it. Example, children's toys, feet's length. Note the possessive is generally used with the names of living things. Example, the color of the book, not the book's color. ठीक है, तो यहाँ पे नोट देने वाली बात है, पोजेसिव जो है ये जनरली यूज किया जाता है लिविंग थिंग्स के नेम्स के साथ। Now change the highlighted part of the sentence to its possessive form. These books belong to Sunil. तो हम लिखेंगे these books are of Sunil's. ठीक है, now next interjections. Oh, what a terrible stone. Poetry. The words oh, hello, alas, etc. expresses some sudden feelings. These words are called interjections. तो interjections जो होते हैं ये आपके sudden feeling को, sudden joy को, sudden sadness को दर्शाते हैं। Now match the interjections in column A with the sentences in column B. तो यहाँ पे आपके कॉलम ए में इंटरजेक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस के साथ मिलाना है। लाइक हेलो, हाउ आर यू। जब आप किसी से उसका हालचाल पूछते हैं तो आप पहले क्या बोलते हैं, उसको हेलो बोलते हैं। ओह दैट्स बैड, कुछ बुरा हुआ है तो आप बोलेंगे ओह दैट्स बैड। Now word power. In column A you will see group of words, each of them can be replaced by just one word from column B. Match the group of words with the single word that can be used in their place. You may consult a dictionary if you need to. तो इसके लिए आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उनको वन वर्ड से मैच करना है। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मेक सेंटेंसेज विद द गिवन वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स से क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। दैट लाइक अशोका वॉज अ ग्रेट सम्राट। क्रिएटिव जंक्शन, वुड यू लाइक टू हैव अ प्लांट ऑफ योर ओन। You can either plant one in a pot or your garden or buy one and care for it. Material required, 6-inch diameter flower pot, soil and fertilizer mixed, a trowel, a mug of water, a plant from a nursery. Now steps.
Put the soil mixture in the pot till half. Put the plant in the pot. Fill with soil and press from all sides. Water the plant. Keep it in shade and water it every day. आपको क्या करना है, प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद से सीड लेकर प्लांट ग्रो कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से प्लांट लाकर उसकी टेक केयर कर सकते हैं। Who is the great man, a conqueror or a social reformer? Give reason for your answer. Discuss in group of 4. आपके हिसाब से ग्रेट मैन कौन है? एक कॉन्करर जो लोगों का जो सत्ता है या जो उनकी राज्य है उनको हथियाता है, या फिर एक सोशल रिफॉर्मर जो लोगों को अच्छाई का ज्ञान देता है, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने को बोलता है। तो इन दोनों में से आप किसे ग्रेट मैन समझेंगे या मानेंगे, तो आपको डिस्कस करना है 4 लोगों का ग्रुप या 4 ग्रुप्स को बना करके। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.